নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.23.20 ऑनवर्ड्स। तो बहुत जल्दी ये नवां स्कंद समाप्त होने वाला है। नवां स्कंद समाप्त होने के बाद मैं सोचा था हम लोग हिंदी और बंगाली दोनों पैरेलल भागवतम चलाएंगे। 3 बजे से 4 बजे हिंदी भागवतम कोई भक्त कराएंगे और मैं बंगाली कराऊंगा। दोनों एक साथ चलाएगा। जिनको जो सुविधा है उस भाषा में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यस। कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? चारू गोपी माता जी, पूनम जयसवाल माता जी, भारती जयसवाल माता जी, निर्गुणा लंबरी माता जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिलहाल। जब मिलेगा कोई स्पीकर तो हिंदी में पढ़ाएंगे। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित् कृष्ट नलो लिपुरिति श्रुत चत्वार शून्यवस्तत्र ततजित् प्रथमात्मज महाहायो रेणुहायो हे हयश्चेति तत्सुतः। अनुवाद, translation. The Supreme Personality of Godhead Krishna, the Super Soul in the hearts of all living entities, descended in his original form as a human being in the dynasty or family of Yadu. Yadu had 4 sons named Sahasrajit, Kroshta, Nala, Ripu. Of these 4, the eldest Sahasrajit had a son named Satyajit, who had 3 sons named Mahahai, Renuhai, and Haihai. Okay. तो भगवान इस यदु वंश में जन्म लिए। अगला तात्पर्य, as confirmed in Srimad Bhagavatam 1.2.11, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. The majority of transcendentalists understand only the impersonal Brahman or localized Paramatma. For the personality of Godhead is very difficult to understand. As the Lord says in Bhagavad Gita 7.3, Manushyanam sahasreshu kaschityathi siddhaye yatataamapi siddhanam kaschin mam vetti tattvata. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me. In truth, the yogis and jnanis, that is the mystic yogis and the impersonalists, can understand the absolute truth as impersonal or localized. But although such realized souls are above ordinary human beings, they cannot understand how the SPOG, Supreme Absolute Truth, can be a person. Therefore, it is said that out of many siddhas, the souls who have already realized the absolute truth, one may understand Krishna, who exactly resembles a human being, Narakriti. This human form was explained by Krishna himself after he manifested the Virat Rupa. The Virat Rupa is not the original form of the Lord. The Lord's original form is Dvibhuja, Shyama Sundara, Murlidhara, the Lord with 2 hands playing a flute. Yam Shyama Sundaram Achinta Guna Swarupam. The Lord's forms are proof of his inconceivable qualities. Although the Lord maintains innumerable universes within the period of his breath, he is blessed with a form exactly like that of a human being. That does not mean, however, that he is a human being. This is his original form. But because he looks like a human being, those with a poor fund of knowledge consider him an ordinary man. The Lord says, Avajananti ma mudha
मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Bhagavad Gita 9.11. By the Lord's Param Bhavam or transcendental nature, He is the all-pervading Paramatma, living in the core of the hearts of all living entities. Yet, He looks like a human being. Mayavad philosophy says that the Lord is originally impersonal, but assumes a human form and many other forms when He descends. Actually, however, He is originally like a human being, and the personal Brahman consists of the ray of His body. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti. हरे कृष्णा. यस, कोई पढ़ना चाहेंगे हिंदी? हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़े. हाँ, थैंक यू. धर्मास्तु है हया सुतो. धर्मास्तु है या सुतो. नेत्र कुंते पिता लता. नेत्र कुंते पिता तथा. सोहंजी अभवत कुंते. सोहंजी अभवत कुंते. महिष्मान भद्रसेनका. महिष्मान भद्रसेनका. हया का पुत्र धर्म था और धर्म का पुत्र नेत्र था, जो कुंती का पिता था. कुंती से सोहजित से महिष्मान तथा महिष्मान से भद्रसेनक उत्पन्न हुए. हरे कृष्णा. नेत्र कुंती के पिता, कुंती से सोहन जी. कुंती पांडव वाला कुंती होगा शायद. देखते हैं. दुर्मदो भद्रसेनस्य. दुर्मदो भद्रसेनस्य. धनका कृतवीर्यसु. धनका कृतवीर्यसु. कृतग्नि कृतवर्म च. कृतग्नि कृतवर्म च. कृतौज धनकात्मज. कृतौज धर्म आत्मज. भद्रसेन के पुत्र द्रुमद तथा धनक कहलाए. धनक कृत वीर के अतिरिक्त कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतौज का भी पिता था. हरे कृष्णा. अर्जुना कृतवीर्यस्य. अर्जुना कृतवीर्यस्य. सप्तद्वीपेश्वरो अभवत्. सप्तद्वीपेश्वरो अभवत्. दत्तात्रेयाद्धरेरंसात्. योग महागुणा. प्राप्त योग महागुणा. कृतवीर का पुत्र अर्जुन था. वह कार्तवीर अर्जुन 7 दीपों वाले संपूर्ण संसार का सम्राट बन गया. उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार दत्तात्रेय से योग शक्ति प्राप्त हुई थी. इस प्रकार उसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं. हरे कृष्ण. कौन सा श्लोक है प्रभु जी? सबर पढ़ना. प्रभु जी कौन सा अध्याय पढ़ाया जा रहा है? कौन सा श्लोक? नवम स्कंद 23वां अध्याय 24वां श्लोक खत्म हो गया. अच्छा. नानुनम कार्तवीरस्य. न नूनम कार्तवीरस्य. गतिं यस्यन्ति पार्थिव. गतिम यसन्ति पार्थिव. यज्ञदान तपो योगे. यज्ञदान तपयो यज्ञे. श्रुतवीर्य दयादिभिः. श्रुतवीर्य दयादिभिः. इस संसार का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, शिक्षा, बल या दया में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था. हरे कृष्णा. पंचशीति सहस्राणि. पंचशीति सहस्राणि. यव्यहत बल सम. अव्यहत बलम समा. अनस्त वित्त स्मरणो. अनस्त वित्त स्मरणो. बहुजे अक्षय सत्वसु
बहुजे अक्षशया सट वसु। कार्तवीर अर्जुन ने निरंतर 85,000 वर्षों तक पूर्ण शारीरिक बल तथा त्रुटि रहित स्मरण शक्ति से भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। दूसरे शब्दों में उसने अपने 6 इंद्रियों से अक्षय भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। हरे कृष्णा। तस्य पुत्र सहस्रेषु तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचैवोर्वरितान्विते पंचयोवरितामिघ्ने जयाध्वज सुरसेनो जयाध्वज सुरसेनो वृषभो मधुरपूर्जित। वृषभो मधुरोजित। कार्तवीर अर्जुन के 1,000 पुत्रों में से परशुराम से युद्ध करने के पश्चात केवल 5 पुत्र जीवित बचे। उनके नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु तथा उर्जित। हरे कृष्ण। जयध्वज तलाजघास जयध्वज तलाजंग तस्य पुत्र सतां त्वभूत्। तस्य पुत्र सतां त्वभूत्। तत्रां यत् तलजङ्घाख्यं क्षत्रां यत् तालजङ्घाख्य और्वतेजोपसारितम्। मम वर्तेजोपसृतम्। जयध्वज को तालजंग नाम का एक पुत्र था जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस तालजंग नामक वंश के समस्त क्षत्रियों का विनाश महाराज सागर द्वारा किया गया, जिन्हें ओवर्य ऋषि से महान शक्ति प्राप्त हुई थी। हरे कृष्णा। तेषां ज्येष्ठो वितिर्होत्रो तेषां ज्येष्ठो वितिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधुस्मृतः। वृष्णिपुत्रो मधुस्मृतः। तस्य पुत्र सतां त्वसीत्। तस्य पुत्र सतां त्वसीत्। वृष्णिजेष्ठं यतकुलम्। वृष्णिजेष्ठं यत्कुलम्। तालजंग के पुत्रों में से वितिहोत्र सबसे बड़ा था। वितिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका पुत्र वृषिंग विख्यात था। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषिण सबसे बड़ा था। यादव, माधव तथा वृषिण नामक वंशों का उद्गम यदु, मधु तथा वृषिण से हुआ। हरे कृष्ण। माधवा विष्णयो राजन् माधवा विष्णयो राजन् यादवा चेति संहिता। यादवाशे स्थित संगीता। यदुपुत्रस्य चाक्रोष्टौ यदुपुत्र यस्य चाक्रोष्टो पुत्रो वृजिनवंस्तथा। पुत्रो वृजिनवंशतः। स्वाहितो ततो विशागुर्वै। स्वाहितो आतो विषाद गुर्वे। तस्य चित्ररथस्ततः। तस्य चित्ररथ तत्तथा। तथा बिन्दुर्महायोगी शवाबिन्दु महायोगी महाभागो महान् अभूत्। महाभागो महानुभूत। चतुर्दश महारत्नाः चतुर्दश महारत्ना चक्रवर्ती अपराजिता। चक्रवर्य पराजित। हे महाराज परीक्षित, चूंकि यदु, मधु तथा वृषिण में से प्रत्येक ने वंश चलाए, अतः उनके वंश यादव, माधव तथा वृषिण कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्टा को वृजिनवान नाम का एक पुत्र हुआ। वृजिनवान का पुत्र स्वाहित था। स्वाहित का विषद्रगुण, विषद्रगुण का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु हुआ, जो महान योगी था और 14 ऐश्वर्यों से युक्त था तथा वह 14 महान रत्नों का स्वामी था। इस प्रकार वह संसार का सम्राट बना। तो ये सभा बिंदु के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तात्पर्य तात्पर्य मार्कंडेय पुराण में
14 प्रकार के महारत्नों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। 1 नंबर हाथी, 2 घोड़ा, 3 रथ, 4 पत्नी, 5 वाण, 6 संपत्ति कोश, 7 माला, 8 बहुमूल्य वस्त्र, 9 वृक्ष, 10 भला, 11 पाश, 12 मणि, 13 छाता, 14 विधान। सम्राट होने हेतु इन 14 ऐश्वर्यों का होना आवश्यक है। शशबिंदु के पास ये सभी थे। हरे कृष्णा। 32 नंबर श्लोक। तस्य पत्नी सहस्राणाम तस्य पत्नी सहस्त्राणां दशनाम सुमह यसा दशनां सुमहयश 10 लक्ष सहस्राणि 10 लक्ष सहस्त्राणि पुत्राणां तसजीजनात् पुत्राणां तस्वजीजनात्। सुप्रसिद्ध शशबिंदु की 10,000 पत्नियां थी और उसको उनमें से एक प्रत्येक से 1,00,000 पुत्र हुए। इस प्रकार उसके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। हरे कृष्ण। तेषां तु सत्प्रधानानां तेषां तु षट् प्रधानानां तु श्रवस आत्मज पृथुसवस आत्मज धर्मो नामो सनातस्य धर्मो नामो सनास्तस्य भयामेधा सतस्य यात् हयमेधत् सत्तत्स्यात्। इन अनेक पुत्रों में से 6 अग्रणी थे, यथा पृथुश्रवा तथा पृथुकृति। पृथुश्रवा का पुत्र धर्म कहलाया और उसका पुत्र उशाना कहलाया। उशाना ने 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न की। हरे कृष्ण। तत्सुतो रुचकास्तस्य तत्सुतो रुचकातस्य 50 शृणु 50 आत्मज शृणु पुरुजित् रुक्म रुक्मेषु पुरुद्विदुक्म रुकेषु पृथु जग्म घ संगीत पृथु जगमय संगीत। उशाना का पुत्र रुचक था, जिसके 5 पुत्र थे, पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु तथा जयमग। कृपा इन मुझमें इनके विषय में सुने। हरे कृष्ण। जामग स्वप्रजोप्यानम् अन्यम् जानमग तो स्वप्नजम् भार्यं सेव्य पतिर्भयात् भार्यं सेव्य पति भर्यत गोविन्दच्छात्र भवनात् नवीन्द्र शत्रुभवनाद् भोज्यं कन्यम् अहारसित् भोज्यं कन्यमहर्षित् रथस्थं तं निरीक्षार्थ रथातस्तं निरीक्षाय विद्यापतिममर्षित चेभ्य पतिमिमर्षित इयं कुहकमत्स्थानम् एहं कुहकमस्थानं रथम् आरोपितेति वै रथमारोपिते वे स्नुष तवेतभिहिते स्नुषत्वेतभिहिते स्मयन्ति पतिमब्रवीत् समयन्ति प्रतिमम् अब्रवीत्। जयामग को कोई पुत्र न था, किंतु क्योंकि वह अपनी पत्नी शव्या से डरता था, अतः उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार जयामग किसी शत्रु राजा के खेमे से एक लड़की को ले आया, जो एक वेश्या थी, किंतु उसे देखकर शव्या अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने अपने पति से कहा, क्यों रे धूर्त, यह लड़की कौन है जो रथ में मेरे
आसन पर बैठी है। तब जयामग्न ने उत्तर दिया, यह लड़की तुम्हारी बहू पुत्र वधू होगी। इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर सभ्या ने हंसते हुए उत्तर दिया। हरे कृष्णा। 37 नंबर श्लोक। अहम वंद्य सपत्नी च अहम बध्य स पत्नी च दोषमे युज्यते कथम मे युज्यते कथम जनायसि यम यज्ञी जनायसि यं रज्ञि याम उपयुज्यते तस्यामुपयुज्यते। सभ्या ने कहा, मैं बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है। भला यह लड़की मेरी बहू पुत्र वधू कैसे बन सकती है? जयमग्न ने उत्तर दिया, मेरी रानी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे सचमुच पुत्र होगा और यह लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। हरे कृष्णा। कॉम्प्लिकेटेड। अगला अंतिम श्लोक 38। अन्वमोदन्त तत् विश्वे अन्वमोदन्त तद्विश्वे पितर एव च देव पितर एव च दिव्यगर्भम् अधात् काले सेव्य गर्भम अधात काले कुमाराम शुशुवे शुभम कुमार शुशुवे शुभम सविदर्भ इति प्रोक्त्वा सविदर्भ इति प्रोक्त ये मे स्नुषाम सतीम् उपये में सुनसाम सतीम। बहुत काल पूर्व जयामक ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं की दया से जयामक के शब्द सही उतरे। यद्यपि सभ्या बांझ थी, लेकिन देवताओं की कृपा से वह गर्भिणी हुई और समय आने पर उसने विदर्भ नामक शिशु को जन्म दिया। क्योंकि शिशु के जन्म के पूर्व ही उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार किया जा चुका था, अतः जब विदर्भ से आना हुआ तो विदर्भ ने उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत याति के पुत्रों की वंशावली नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।